student, welcome back to my channel. In my last video we have discussed structure and development of the ovary. अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज हम ओवरी का अगला पार्ट देखने वाले हैं और वो है ओवरियन हिस्टोलॉजी। सो let's begin. So this image indicates structure of ovary. क्या है इसके अंदर देखते हैं. In a mature ovary primarily in the cortex. ये जो ओवरी का पोर्शन है वो है कॉर्टेक्स का रीजन, और ये कॉर्टेक्स के रीजन के ये जो पूरा जो पोर्शन है वो है कॉर्टेक्स का रीजन, इस साइड का. ओके, आपको समझ में आया होगा. एज इन द ओवरी, इन मैच्योर ओवरी प्राइमरी इन द कॉर्टेक्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ oocytes कैन बी सीन. ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा. As this one is a primordial follicle, primary follicle, secondary follicle, और ये लास्ट जो है वो है mature follicle और उसको बोलते हैं Graafian follicle. As in the ovary, primarily in the cortex, the different stages of development of oocytes seen in maturation of the primordial follicles. So this first image indicates the primordial follicle. Second one, it's a primary follicle. Then there is a development of the secondary follicle, and the last one is there is a formation of the Graafian follicles. Or this Graafian follicle, it is also called as the mature follicles. So हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर देखा था. क्या है ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल? दिस प्राइमोर्डियल फॉलिकल इट्स अ प्राइमरी oocytes. ये जो है ये है प्राइमरी oocytes. It's surrounded by a single layer of flat-ended epithelial cell. That's a follicular cell, and this primordial follicle, it's a numerous in numbers. It's a very small in size. आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर के प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है. It's a numerous, small in number, small in size. These primordial follicles develops it into the primary follicles. These primary follicles has multi-layered. So you can see here there is a presence of multi-layered cuboidal follicular cells. The stroma cell at the theca over the follicles. ये जो बाजू की सेल है वो है स्ट्रोमा सेल. This stroma cell at the theca over the follicles. Afterward, these primary follicles is changed into the secondary follicles. हमने अभी तक क्या देखा है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स. ये जो फर्स्ट इमेज है ये है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स की. दिस प्राइमोर्डियल फॉलिकल इट्स हैविंग द प्राइमरी oocyte. मैंने पहले भी बोला था इट कंटेन्स द प्राइमरी oocyte एंड सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर flat-ended epithelial, that is the follicular cell. It's a small, numerous in number, and these primordial follicles develops it into the primary follicles. These primary follicles, it's a multi-layered cuboidal follicular cell, and there is a presence of the theca cover it. So this is says as the theca. The theca overs the follicles. ये follicles के ऊपर ये theca का covering आता है. The further part, these primary follicles change into the secondary follicles. आपको समझ में आगे अभी हमने क्या देखा है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स की डेवलपमेंट किस में होती है? प्राइमरी फॉलिकल्स. और प्राइमरी फॉलिकल्स से क्या डेवलप होने वाला है?
secondary follicles. So this structure indicates the secondary follicles. These secondary follicles grow into the mature Graafian follicles. सेकेंडरी फॉलिकल्स की डेवलपमेंट किस में होने वाली है? मैच्योर follicles, or it also says as the Graafian follicles, by the addition of more follicular cells. इसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स के follicular cells ऐड होने वाले, by the addition of the more number of the follicular cell. As this secondary follicles, there is a growth of oocytes. ये देख रहे हैं आप, ये है oocytes इसका. There is a growth of oocytes. There is a growth of oocytes. ये पूरा जो है ये oocytes का है. There is a growth of oocytes and the granulosa cell. ये जो पूरी सेल है ये है granulosa cell. Okay. This is says as the granulosa cell. This granulosa cell, it is increasing number. आप देख रहे हो यहाँ पे ये granulosa cell की numbers जो है वो increase हो रहे हैं. They start producing the hormone estrogen. आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि secondary follicles में जब granulosa cells के numbers increase होते हैं तो यहाँ पे female reproductive system के जो 5 हार्मोन्स थे उनमें से एक जो हार्मोन है वो था एस्ट्रोजन, और वो एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पे सीक्रेट होने के लिए ये ग्रैन्युलोसा सेल्स के नंबर इंक्रीज होते हैं. इफ दे स्टार्ट दिस ग्रैन्युलोसा सेल, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन एस्ट्रोजन. As these secondary follicles grow into the Graafian follicles, that's a mature follicle, by addition of more follicular cell. There is a addition of more follicular cell. यहाँ पे follicular cells की addition ज़्यादा होती है. Addition of more follicular cells, they begins to move towards the surface of ovary. ये जब पूरा ग्राफियन फॉलिकल्स फॉर्म होता है ओवरी के अंदर, तो ये जो ओवरी का वॉल होता है, ये आप देख रहे हैं ये ओवरी का वॉल है, ये ओवरी के वॉल के बाजू में ये ग्राफियन फॉलिकल्स मूव होता है. As the process of maturation of follicles takes place, they begin to move towards the surface of ovary. ये ग्राफियन फॉलिकल है और ये ओवरी के वॉल के बाजू में मूव हो रहा है. द ग्राफियन फॉलिकल प्रेस, ये वॉल को प्रेस कर रहा है. ये जो है ये ग्राफियन फॉलिकल ये वॉल को प्रेस कर रहा है, ओवरी के वॉल को प्रेस कर रहा है. द ओवर ग्राफियन फॉलिकल प्रेस अगेंस्ट द थिन वॉल ऑफ ओवरी, गिविंग इट अ ब्लिस्टर अपीयरेंस. ब्लिस्टर का मतलब क्या है? छाला पड़ जाता है. यहाँ पे ये ओवरी का वॉल सोलन हो जाता है, यहाँ पे छाले आ जाते हैं, और छाले आने के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट होता है. द एग इज रिलीज्ड which is in secondary oocyte stage, and that process it says as ovulation. उसको क्या बोलते हैं? ओवुलेशन प्रोसेस बोलते हैं. द रिमेनिंग पार्ट, ये जो पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का, द रिमेनिंग पार्ट of the follicle change into a temporary endocrine gland, and that gland it says as a corpus luteum. It says as corpus luteum. If fertilization is not takes place, अगर यहाँ पे एक fertilize नहीं हुआ होगा तो corpus luteum it degenerate. इसका कन्वर्जन किस में हो जाता है? इसका कन्वर्जन हो जाता है corpus albicans. The corpus luteum it's degenerate. The corpus luteum degenerate. It start degenerating and convert it into the corpus albicans. Okay, आपको समझ में आएगा. अभी यहाँ पे नोट्स भी दिए हैं,
आप ये इसको डायरेक्टली लिख भी सकते हैं लेकिन और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं स्लोली आपको दिखाती हूँ। हमने तो यहाँ पहले देखा है ओवरी का प्रिमिटिव स्ट्रक्चर देखा है, ओवरी के स्ट्रक्चर्स देखे हैं। बाद में हमने प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स इन डिटेल देखा है, प्राइमरी फॉलिकल्स देखा है। उसके बाद हमने प्राइमरी फॉलिकल्स का कन्वर्जन सेकेंडरी फॉलिकल्स में देखा है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि ग्रैन्युलोसा सेल्स के जो नंबर है वो बढ़ जाते हैं और यहाँ पे हार्मोन सिक्रीट होने के लिए चालू होता है। सेकेंडरी फॉलिकल्स की ग्रो होती है और उससे बनता है ग्राफियन फॉलिकल्स। आपको समझ में आया होगा। Afterward, as the process of maturation of follicles takes place, they begins to move towards the surface of ovary. मैंने बोला आपको, जब ये ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरह से फॉर्म होता है तो ये ओवरी के वॉल के साइड में शिफ्ट होता है। द ग्राफियन फॉलिकल प्रेस्ड अ थिन वॉल ऑफ ओवरी गिविंग अ ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस। छाला पड़ जाता है ये ओवरी के वॉल के ऊपर और उसमें से ये सेकेंडरी उस साइड स्टेज में जो एग होता है वो ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाता है। जो रिमेनिंग पार्ट था फॉलिकल्स का, उसका कन्वर्जन हो जाता है कॉर्पस ल्यूटम में। और अगर ये एक फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा तो कॉर्पस ल्यूटम डीजेनरेट होता है और उससे बनता है कॉर्पस अल्बिकन्स। ओके, आपको समझ में आया होगा। हियर वी कंप्लीटेड ovarian histology. In my next video, we see structure of Graafian follicle. Thanks for watching my video. Thank you.